This Rachna Parishad. conference will now be recorded. For today's session, it is my pleasure to welcome and introduce Vaidya Mahesh Thakur sir. He has completed his BAMS from Sayan Ayurved Mahavidyalaya and MPhil from Tiyak Maharashtra Vidyapit, Pune. He has rich experience of Ayurved practice, uh, acclaimed for treating challenging cases and rare diseases for last 28 years. He has been appointed as Rashtriya Ayurved Guru by Rashtriya Ayurved Vidyapit, Ministry of Ayush, Government of India. He has valuable contribution in elevating confidence of almost 1,000 plus, uh, more than 1,000 young practitioners through his unique course Chikitsa Tattva that explains the clinical application of basic principles of Ayurveda with several case studies. He has imparted both theoretical elaboration and step-by-step practical demonstration of Ayurveda drug preparation through Aushad Nirman Karyashala. Few publications are on his name, like Haritaki for Ayurveda practitioners and Introduction of Panchakarma for common people. Authored many articles in scientific journals. He has done clinical evaluation of Chakramarda ointment in Vicharchika. He holds a record of conducting and comparing uninterrupted 108 clinical meetings over a period of 10 years in Dombivli for Ayurveda practitioners. He was a president and secretary of Maharashtra Ayurveda Sammelan in Dombivli branch. He was vice president of Ayurveda Vyaspit, Konkan region. He is bestowed with few awards like National Gold Medal for Best Young Practitioner by Akhil Bharatiya Ayurved Shikshak Sangha in 2003, with prestigious title Bhishak Varya Doctor of the Year Award by Brahman Sabha Dombivli in 2001. It was my personally it was my fortune to God to learn many things under him during my student days. Many times we just prescribe medicine uh, because somebody has told, but don't know exact the reason. To explore this concept, with this brief introduction, I request sir to start his session. Sir, please start. Thank you.
Just wait for 2 minutes. Sir might have left now. Hello, Hello? hello, Yes, sir. Hello? hello, Yes, Hello. yes, sir. It is audible. hello. Hello? Sir, you are audible.
Hello. 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 Yes, sir, Ah, you're Sir, you are audible. audible. hello. I'm audible. Yes, yes. Am I audible? Yes, sir. Yes, Hello. sir. Yes. Thank you. Thank you. So, should we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. शुरू करें हम. ठीक है. ठीक है. हेलो. हेलो. Hello. हाँ, sir, अच्छा, you are सर्वप्रथम audible. मैं Please. Sir. सर्वप्रथम मैं मेरे विद्यार्थी वैद्य चिन्मय फोंडेकर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये आज के इस विषय पर ड्रग डिज़ाइनिंग एंड आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव इस विषय पर आपके सामने कुछ मेरी बातें और कुछ हमारे शास्त्रीय तथ्य जो है वो आपके सामने रखने के लिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो आज का जो विषय है वो ड्रग डिज़ाइनिंग जो है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आयुर्वेद में कही गई है, उसके ऊपर हम आज कुछ रोचक दृष्टिक्षेप डालेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या आयुर्वेद में कहा गया है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कभी भी दवाइयाँ बनाते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त और पढ़ते वक्त। तो चरक कहते हैं कि विज्ञानम औषधि नाम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैद्य को जो जानना चाहिए, जिसके बारे में वैद्य को ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए, वो है औषधि। वो है औषधि और औषधि के बारे में एक विशेष ज्ञान जो रखता है वो वैद्य सफल हो जाता है। आगे कर आगे चरक कहते हैं कि विज्ञानम औषधि नाम शास्त्र सहित तर्क साधना नाम योगो वैद्य गुणा नाम। तो विज्ञानम औषधि नाम ये जैसा है वैसे ही वैद्य का जो साधन है वो है शास्त्र सहित तर्क। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास साधन बहुत होंगे, साधन आजकल के टेक्नोलॉजी से नए नए भी आएंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट साधन है वो है शास्त्र के साथ, शास्त्र की भली भांति जानकारी होने के बाद आप जो तर्क करते हैं, जो लॉजिक यूज करते हैं, वो सबसे बड़ा साधन है, ऐसे चरक कहते हैं। और आगे ये भी बताते हैं कि वैद्य का सर्वश्रेष्ठ गुण जो है वो है योग। योग का मतलब है कि आप जिस तरह का मिक्सचर करके या जिस तरह की भेषज व्यवस्था रुग्णों के लिए उपलब्ध करते हैं, जो आप मन में सोचते हैं और वो एक तरह का परफेक्ट योग बना के आप औषधि का उनको देते हैं रुग्ण को। अगर उसमें अगर आप सफल हुए, अगर आप वो सबसे बेस्ट बना सकते हो उसके लिए उसकी संप्राप्ति जानकर, तो वो जो गुण है वो वैद्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, ऐसे चरक कहते हैं। तो इन सब तथ्यों के बाद हम आगे जाके कहेंगे कि आगे जाके कहेंगे कि चरक ये भी कहते हैं तदेव युक्तम भैषज्यम यद आरोग्याय कल्पते सचैव भिषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्यो यो प्रमोचयेत्। श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैद्य कौन है और उसकी व्याख्या यहाँ पे की है, सचैव भिषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्यो यो प्रमोचयेत्। Which details are hidden while uh, which details are hidden? Here the notifications are coming. Hello, hello Chinmay ji. Hello, Chinmay जी. हेलो. ओके, ठीक है, मैं आगे बोलता हूँ, आप अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे स्क्रीन पे बताइए। तो
रोगेभ्यो यो प्रमोचेत, इसका मतलब ये हुआ कि रोग का जो हरण करता है वो श्रेष्ठ वैद्य है ही, लेकिन आगे जाके वो कहते हैं कि श्रेष्ठ वैद्य कैसे हुआ, तो रोगेभ्यो यो प्रमोचेत इति अनेन ज्ञानपूर्वक भेषज प्रयोगेण रोग हरकत्वम इति उच्यते, ऐसे चक्रपाणि कहते हैं। वो यही कहते हैं कि वो यही कहते हैं कि तेन यादृच्छिक सिद्धया कुवैद्य व्यवहारो न वाच्यः। इसका मतलब ये हुआ कि आपने दवाई दी और पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन ये कैसे हुआ इसके बारे में वैद्य अगर बता नहीं सका तो ये यदृच्छिका सिद्धि है, ऐसे कहते हैं चक्रपाणि। जो वैद्य श्रेष्ठ है वो ये बता पाता है कि रुग्ण में क्या संप्राप्ति है इस रोग की, और इसलिए ये वैषज कैसे काम करेगा, कौन से डोज में दिया तो कितना काम करेगा, किस अनुपात के साथ कैसे ये रोग का हरण होगा, कितने दिनों में होगा, इसका जो सोच रखते हैं वो वैद्य ज्ञानपूर्वक भेषज का प्रयोग करते हैं, और ऐसे वैद्य श्रेष्ठ वैद्य करके हमें जानना चाहिए। इसमें ज्ञानपूर्वक भेषज प्रयोगेण इस ये उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण दर्शाता है वैद्यों के गुणों को या श्रेष्ठ वैद्यों को, जिसमें आपको औषध के बारे में, भेषज के बारे में पूरी सही तरीके से जानकारी हो और वो आप अच्छी तरह से प्रयुक्त कर सकें। आगे जाएंगे और इसीलिए कहते हैं आगे जाके भी चरक ही कहते हैं सम्यक प्रयोगम सर्वेशम सिद्धिराख्याति कर्मणाम सिद्धिराख्याति सर्वेश्च गुणे युक्त भिषक्तम। यहाँ पे कहते हैं कि आप जो भी पंचकर्म करें, आप जो भी योगों का यूज करें, उनका सम्यक प्रयोग अगर हो गया तो उसे सिद्धि कहते हैं। और सिद्धि के बारे में आगे जाके चक्रपाणि भी कहते हैं कि सिद्धिराख्याति उक्ता प्रातिनियम की सिद्धि न यादृच्छिकी। प्रातिनियम की सिद्धि, इसका मतलब हुआ कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस। दो तरह की सिद्धि बताई गई, प्रातिनियम की सिद्धि और यादृच्छिका सिद्धि। प्रातिनियम की सिद्धि इसका मतलब है कि आप जो भी प्रैक्टिस करते हो, आप जो भी दवाई देते हो, भेषज का उपयोग करते हो, जो भी क्रिया करते हो, उसमें कुछ रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, कस्टम्स हो, कुछ कुछ डायरेक्टिव्स हो, साइंटिफिक फ्रेम्स हो, उसमें अगर आप चिकित्सा करते हो तो वो प्रातिनियमिक नियमों के अनुसार सिद्ध होने वाली चिकित्सा, ऐसे उसे कहा जाएगा। और नहीं तो फिर वो यादृच्छिका सिद्धि होगी। और हमारे ग्रंथों में और हमारे ऋषि और हमारे महर्षि प्रातिनियमिक सिद्धि का ही आग्रह धरते हैं, जिसमें जिसमें आज के विषय का अंतर्भाव है, और वो है कि हम ज्ञानपूर्वक भेषज प्रयोग के लिए ड्रग के डिजाइनिंग को जानें, और इसका उपयोग करते हुए हम कैसे योग बना सकेंगे, किस तरह का योग अच्छा है, ऐसे हमारे ग्रंथ करते कहते उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पर्सपेक्टिव एक हमारा जो लेक्चर है उसका पहला भाग जो है वो अभी शुरू हो रहा है, वो है पर्सपेक्टिव 1, ड्रग डिजाइनिंग में हमें किस तरह से सोचना चाहिए। और वो है व्याधि भेषज प्रभाव। चरक विमान स्थान में अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में भी ये कहा गया कि तत्र अनेक दोषात्मकेषु व्याधिषु अनेक रसेषु भेषजेषु च रसदोष प्रभावम एकैकशो अभिसमीक्ष्य व्याधि भेषज प्रभाव तत्व व्यवस्य। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ये कहते हैं हमारे ग्रंथकर्ता कि व्याधि अनेक दोषात्मक होता है, और जो भेषज होता है वो अनेक रसात्मक होता है, रस वीर्य विपाक प्रभाव वाला होता है। और आपको
एकैकशो अभिसमीक्ष्य व्याधि भेषज प्रभाव तत्व व्यवस्थित। आपको व्याधि भेषज का प्रभाव तत्व पता होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको जो भी व्याधि है उसकी संप्राप्ति सामान्य और विशेष आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें कौन से दोष, कौन से धातु, कौन से मल इन्वॉल्व है, कौन से उपधातु इन्वॉल्व है, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या अवस्था है, उनका गतत्व क्या है, कौन से अवयव उसमें इन्वॉल्व है, इस सब का ज्ञान आपको एक तरह से हो एक बाजू में। और दूसरी तरफ आपको जो भी आप औषध यूज करने वाले हैं उसका सही तरह से रसवीर्य विपाक आदि सब पांचभौतिक संगठन आदि सब आपको पता हो। और ये दोनों को आप मिला के, या एक जगह पे व्याधि लिखा है, दूसरी जगह पे भेषज लिखा है, उनका पूरा डिटेल वर्णन है, और उनको आप मिला के देखो कि उनका, तो आपको व्याधि भेषज प्रभाव का पता चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दवाइयों का सिलेक्शन करने के पहले व्याधि की संप्राप्ति की भली भांति जानकारी होनी चाहिए, और आपको उसको डिटेल में आपको उसका महत्व मालूम होना चाहिए। जैसे कि अनेक दोषात्मक व्याधि, अनेक रसात्मक भेषज, उनको आप मिला के देखिए, और फिर जानिए कि हमारे भेषज का कैसे उपयोग उस पे होगा। इसीलिए अगर ड्रग डिज़ाइनिंग आपको करना है तो पहले आपको व्याधि के संपूर्ण संप्राप्ति का ज्ञान होना जरूरी है। आप किसी भी व्याधि के ऊपर अगर आप कोई भेषज की निर्मिति कर रहे हो या फिर किसी भेषज के बारे में सोच रहे हो, तो आपको पहले व्याधि भेषज प्रभाव का ज्ञान होना जरूरी है। एकैकशो अभिसमीक्ष, एकैको अभिसमीक्ष, इस तरह से आप इसके बारे में सोचें। दूसरा भाग है एकैकशो अभिसमीक्ष। इसका मतलब ये हुआ कि आप व्याधि के टुकड़े टुकड़े करके डिटेल्स में सूक्ष्म उसकी संप्राप्ति को आप देख रहे हो, और एक जगह पे आप उस भेषज के एक एक द्रव्य को निकाल के, अगर आपका संयोग है, कॉम्बिनेशन है, तो एक एक द्रव्य को निकाल के उसका आप एक एक द्रव्य का अभ्यास करके वो संप्राप्ति नाश करने में कैसे सहायक होगा, इसका आप विचार करेंगे। दूसरा भाग है वो है समुदाय प्रभाव। समुदाय प्रभाव इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ में मिलकर दवाइयाँ किस तरह से काम करते हैं, तो उसमें ततो द्रव्य विकार प्रभाव तत्व व्यवस्थित, ये भी कहा गया। समुदाय प्रभाव का भी आपको विचार करना चाहिए इसमें। उसका एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ मैं, और वो है स्वर्ण मालिनी वसंत। और स्वर्ण मालिनी वसंत जो कल्प है, यह कल्प एक उत्तम जीर्णज्वर नाशक कल्प है, और उसमें मरीच जसद सुवर्ण मौक्तिक हिंगुल है, और उसको नवनीत की और नींबू रस की भावना दी जाती है, स्वरस की, और ये कल्प बनता है। ये कल्प जीर्णज्वर नाशक, कास श्वास नाशक, प्राणव स्रोतस के लिए बलदायक, लिहा वृद्धि नाशक, ऐसे इसके गुण बताए गए। और सर्व रोगेशु वसंतः, आप किसी भी रोग में इसका उपयोग करो, ऐसे भी कहा गया है। ये खास करके रस धात्वाग्निवर्धक, रस पोषक, शुक्र धात्वाग्निवर्धक, इस तरह की काम हमें करते हुए दिखाई देता है। लेकिन अगर इसके आप समुदाय का प्रभाव का अगर उदाहरण देखना चाहते हो, तो ये सब द्रव्य एक समुदाय में आने के बाद क्या काम करते हैं आपके सामने मैंने रखा है कि मरीच गुणवत मरीचेभ्यश्च चक्षुषम विशेषतः जसदा यशदम परमम नयनामय नाशकरम नवनीतम संग्राही रक्तपित्तम अक्षिरोगजित सुवर्णम नेत्रम परमम च मौक्तिकम नेत्रम वर्ण्यम च कीर्तितम हिंगुलम लोचनामयहरम। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सुवर्ण मालिनी वसंत, ये कल्प, ये पूरा नेत्र रोग नाशक है। और ये हमें समुदाय के प्रभाव से जानना चाहिए कि ये सब द्रव्य एक साथ में आने के बाद इसका ये कर्म दिखेगा, क्योंकि ये वैशिष्ट्यपूर्ण कर्म सभी द्रव्यों का है। इसीलिए इस कल्प का समुदाय प्रभाव नेत्र व्याधिहर, ऐसे आप बिल्कुल जान सकते हो। एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ,
वो है सुवर्ण सूतशेखर। अगर सुवर्ण सूतशेखर कल्प है वो आम्लपित्त अधिकार में है, काशवास नाशक है, ग्रहणी नाशक है, अतिसार नाशक है, ऐसे इसके बहुत सारे, अजीर्ण नाशक है, शिरशूल नाशक है, ऐसे इसके उपयोग बताए गए फलश्रुति में। इसके प्रमुख जो द्रव्य है उसके बारे में अगर आप सोचोगे तो विषयुक्ताय दद्याश्च शुद्धयोर्ध्वमधस्तथा सूक्ष्मं ताम्रजं काले सचौदरं तत् हृदि विशोधनम शुद्धे हृदि तत् शाणम हेमचूर्णस्य दापयेत्। तो ये विष चिकित्सा में आया हुआ प्रसिद्ध सूत्र है, चरक संहिता और वाग्भट में भी है कि अगर विष प्रयोग वाला रोगी आपके सामने आए तो उसे ऊर्ध्वाधर शुद्धि दो, शुद्धिकरण करो, और बाद में उसे ताम्र रज या ताम्र भस्म दे दो शहद के साथ, और उसका हृदय का विशोधन होने के बाद उसे सुवर्ण दे दो। तो ताम्र और सुवर्ण इन दोनों का उपयोग करने को कहा गया है विष चिकित्सा में। और विरुद्धम च अपि आहारम विद्या विषगरोपमम, ये भी कहा गया कि विरुद्ध आहार जो है वो गर्भ विष के तरह होता है। और गर्भ विष के जैसे विरुद्ध आहार वाले रुग्ण हमारे यहाँ पे बहुत आते हैं, जो विरुद्ध आहार करके बहुत सारी व्याधियों की संप्राप्तियों को लेकर हमारे पास आते हैं। तो उनमें हमें सुवर्ण सूतशेखर में जिसमें ताम्र और सुवर्ण है उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों विषग्न है। अभी आगे जाके देखेंगे कि सूतशेखर में जो सब द्रव्य है उनके बारे में अगर हम देखने जाए तो ये हमें ये प्राप्त होता है। देखिए, सुवर्ण सूतशेखर, सुवर्णम विषापहा, सुवर्णमाक्षिक विषदोषादिकान हरे, ताम्रभस्म तो अम्लम विषहरम। तो ये शंख टंकन रौप्य भी विषग्न है, गंधक गर विषहर है, तातुर्जात भी एक कहा गया भाव प्रकाश में, लघु पित्ताग्नि कृत वर्णम कफवात विषापहा। दत्तुर्बीज एक खुद विष है, फिर भी उष्णो गुरुर वर्ण श्लेष्म कंडु कृमि विषापहा। इस तरह से गर्भ विष का ज्ञान हरण करने वाला है। भृंगराज जिसकी भावना है वो भी विषग्न है। तो सुवर्ण सूतशेखर के सभी द्रव्य विषहर है। इसीलिए सुवर्ण सूतशेखर का उपयोग, ये समुदाय प्रभाव हो गया। इस तरह से आप ड्रग डिजाइनिंग में समुदाय प्रभाव का विचार करें कि समुदाय के तौर पे ये अक्खा जो पूरा आप योग अगर बनाते हो एक तरह का गण ही हो गया, और ये गण जो है ये कैसे काम करेगा। तो सुवर्ण सूतशेखर का जो डिजाइनिंग है उसमें अगर आप देखेंगे तो सब द्रव्य विषहर है, और इसका प्रभाव, समुदाय प्रभाव, ये विषहर ऐसे आपको दिखेगा। और जहाँ जहाँ भी विष के कारण व्याधि निर्माण हो गए वहाँ पे आप सुवर्ण सूतशेखर का बिल्कुल उपयोग कीजिए। और इसी को कहते हैं कि व्याधि भेषज प्रभाव को जानना, और वो जानना है एक एक द्रव्यों का अलग अलग विचार करके, और दूसरा पर्सपेक्टिव है कि उनके समुदाय प्रभाव का विचार करके। तो ये समुदाय प्रभाव के दो उदाहरण आपके सामने मैंने रखे, जो कि फलश्रुति में नहीं है, लेकिन अगर आप समुदाय का विचार करते हो तो एक सुवर्ण सूतशेखर विषग्न है और सुवर्ण मालिनी वसंत नेत्र है। आगे जाएंगे, थर्ड पर्सपेक्टिव क्या है, वो भी चरक का बहुत अच्छा सूत्र है। आप अगर देखेंगे तो आपके सामने है, और वो है कल्पस्थान में, यदि येन प्रधानेन द्रव्यम समुपयुज्यते तत्संज्ञकः स योगो वै भवति इति विनिश्चयः। तो ये प्रधान द्रव्य के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि फलादीनां प्रधानानां गुणभूताः सुरादयः ते ही तानि एव अनुवर्तन्ते मनुजे इंद्रम इव इतरे। जैसे कि इंद्र है यानी कि राजा है, उसका अनुवर्तन प्रजा करती है, वैसे प्रधान द्रव्यों के नाम से ही कल्प उनको टीम मैच विनिंग टीम जैसे कहा जाता है,
इस तरह का एक समुदाय उनका बन गया, वो कारण है उसका लीडर। तो ये लीडर जो है वो प्रधान द्रव्य सूचक है, और ये प्रधान द्रव्य जो है वो लीडर की तरह काम करता है। अगर देखेंगे तो सूक्षेकर का जो भावना द्रव्य है वो है भृंगराज। और आप अगर देखते हैं तो इसमें पारद, गंधक, सुवर्णमाक्षिक, ताम्र, शंख, भस्म, टंकण, इस तरह से एक अ, खनिज द्रव्य है और धातु है। और त्रिकटु, चतुर्जात, बिल्व मज्जा, करचूरक ऐसे वनस्पतिज द्रव्य है। बचनाक, धतुर जैसे विषय है। लेकिन इनको जो भृंगराज की भावना दी गई, तो भृंगराज जो द्रव्य है उसका एक टारगेट स्पेसिफिक एक्शन है, और इसीलिए भृंगराज के कारण ये द्रव्य सूर्यशेखर जो द्रव्य है ये परस्पर विरोधी द्रव्यों को भी अपने टारगेट पे लेके जाता है। तो ये जो लीडर है वो भृंगराज है, और वो कफपित्त नाशक है, अम्लपित्त नाशक है, कफनाशक है। और इसीलिए आप अगर फलश्रुति देखते हो सूर्यशेखर की, तो आप पाते हो कि बहुत सारे गुण भृंगराज के हैं। तो प्रधान द्रव्य अनुवर्तन, ये प्रधान द्रव्य जैसे काम करेगा वैसे सब द्रव्य काम करेंगे, इस उक्ति में ये भृंगराज है। और जिसकी भावना सूर्यशेखर को दी हुई है, तो अपना अपना द्रव्य जो काम करता है वो करेगा ही, लेकिन भृंगराज के साथ मिलके वो उसी संप्राप्तियों का हरण करेगा जो कफ पित्त जनित है। तो इसीलिए, और भृंगराज खास करके पित्तनाशक तो है ही, लेकिन ज़्यादा करके कफनाशक है। और इसीलिए अगर आप सूर्यशेखर की फलश्रुति देखते हो तो ये अम्ल पित्त क्या दवाई तो है ही, लेकिन आप ज़्यादा करके इसे कफज रोगों में पाओगे। तो ये आप देखना, एक अलग सा सूर्यशेखर पे व्याख्यान देने जैसी बात है, लेकिन आज का वो विषय नहीं है। लेकिन आपके सामने वो रख रहा हूँ मैं कि प्रधान द्रव्य अनुवर्तन, आप प्रधान द्रव्य जो भी समझ रहे हो इस योग में, उस तरह से सब द्रव्य काम करते हैं। ये हमारा पर्सपेक्टिव हो गया नंबर 3। इसीलिए प्रधान द्रव्य भावना द्रव्य भी हो सकता है। प्रधान द्रव्य जिसका परसेंटेज ज़्यादा हो वो द्रव्य भी प्रधान द्रव्य हो सकता है। तो इस तरह से प्रधान द्रव्य की अलग अलग भूमिकाएं हैं। यहाँ पे भावना द्रव्य प्रधान द्रव्य होता है। इस तरह से आप ये उदाहरण को आपके सामने मैंने पेश किया। आगे जाएंगे, गण अनुवर्तन। ये गण अनुवर्तन भी एक बहुत बड़ी समझने जैसी चीज़ है, जिसमें यद्यपि च तानि द्रव्याणि इति द्रव्यसङ्करः कषायेषु तथापि च न संज्ञाविरोधः एकस्य अपि बहुनिर्वर्तनात्। इसमें अष्टांग संग्रह में क्या कहा है कि यद्यपि तानि तानि एव द्रव्याणि इति द्रव्यसङ्करः कषायेषु, जो महाकषाय वर्णित किए हैं उन अध्यायों में, चरक में अष्टांग संग्रह में इस तरह के रेफरेंसेस आए हुए हैं, या ये रेफरेंस अष्टांग संग्रह का है महाकषाय गण में सूत्र स्थान में। वो कहते हैं कि एक द्रव्य जो है वो अगर एक कषाय में आया तो, और वो दूसरे कषाय में आया, और उसमें अगर परस्पर विरोधी कर्म लिखे हुए हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ उसके उदाहरण। देखिए, पटोल जो है वो तृप्तिघ्न गण में है, और वैसे वो तृषाहर गण में भी है, और पाठा संधानीय गण में है, और वो संघातहर गण में भी है। तो जो द्रव्य है वो गण का अनुवर्तन करेगा, मतलब जिस गण में है उसी तरह का वो काम करेगा, मतलब उसके आजू बाजू में द्रव्य जो है वो जैसे काम करेंगे वैसा ही करेगा। इसके लिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि एक सोरायसिस का अगर किसी ने योग बनाया हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि इसमें जटामांसी हमने रखी है, जो कि एक उत्तम स्ट्रेस बस्टर है, वो स्ट्रेस को कम करती है, और इसीलिए हमने वो रखी है इसमें। तो जटामांसी अगर स्ट्रेस कम करती है, नींद अच्छी तरह से लाती है, तो हमारी ये सारिवा, मंजिष्ठा, निम्ब, खदीर, इनके साथ जटामांसी हमने दी है। उसका कारण ऐसा है कि सोरियासिस का बहुत बार कारण स्ट्रेस होता है,
और हम इसमें जटामांसी डालेंगे इस उद्देश्य से। लेकिन आप जो उद्देश्य कहते हो वो क्या वो ड्रग अंदर जाके वैसे ही काम करेगा? यहाँ पे कहा गया है कि न संज्ञा विरोधा, इसका मतलब है कि यद्यपि च तानि एव द्रव्याणि इति द्रव्य संकरः कषायेषु, ये द्रव्य संकर जो है उसको महत्व है। अगर जटामांसी आपने सारिवा मंजिष्ठा निम्ब खदीर इनके साथ दी है, हरिद्रा के साथ दी है, तो जटामांसी द्रव्य खुद एक कंडुग्न द्रव्य गण में आया हुआ है। तो अगर वो निम्बक खदीर खदीर और हरिद्रा और विडंग के साथ जाएगा तो वो कुष्ठग्न और कंडुग्न काम ही करेगा, वो बिल्कुल निद्रा जनन का काम नहीं करेगा, स्ट्रेस कम करने का काम नहीं करेगा। तो ये आपको जानना चाहिए कि ये एक द्रव्य संकर होता है। तो ये कहा गया है कि एकस्यापि बहुनिर्वर्तनात्, एक ही द्रव्य के अनेक अनेक कर्म होते हैं, लेकिन वो कर्म उनके साथ में मिले हुए द्रव्यों से दिखते हैं। तो इसीलिए आपको ये सोचना जरूरी होगा कि गण अनुवर्तन, इसका मतलब आपको ड्रग डिजाइनिंग के बाद जब आप करते हो या ड्रग डिजाइनिंग के बारे में सोचते हो, तो ये ग्रुप जो है, जो द्रव्य एक साथ आए हुए हैं, वो किस किस कारण एकत्र आए हुए, इनका विचार करना जरूरी रहता है। और तब संज्ञा विरोध नहीं होता। संज्ञा विरोध मतलब ये हुआ कि अगर ये काम तृप्तिघ्न करने वाला है ये गण, तो इसमें जो पटोल है वो तृप्तिघ्न का भी काम करेगा, क्योंकि ये संज्ञा है, संज्ञा के कारण ये एकत्र आए हुए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे जाएंगे, अगली पर्सपेक्टिव देखेंगे, योगवाहित्व। योगवाहित्व के बारे में हम सोचते हैं और योगवाही द्रव्यों का हम उसमें अंतर्भाव करते हैं। और योगवाही द्रव्यों का जब अंतर्भाव करते हैं तब तब हम ये देखते हैं कि कज्जली जो है वो योगवाही है, रस सिंदूर योगवाही है, या फिर और भी कई योगवाही द्रव्य हम औषधियों में मिलाते हैं। तो सहपानानुपानानां वैशिष्ट्याधिह कज्जली सर्व आमयहरा वृष्यामता दोषत्रयापहा, ये दो तीनों दोषों का हरण करने वाली, सर्व व्याधियों का हरण करने वाली वृष्य ऐसी ये कज्जली है, और आप जिस द्रव्य में डालो वो अच्छा काम कर लेता है। तो ये योगवाही द्रव्य है, वो क्या वो सुप्रीम है? तो अष्टांग हृदय की टीका में बताते हैं कि ये जो योगवाही द्रव्य है ना, ये भृत्यवत है। ये सुप्रीम राजा के जैसे काम करने वाले नहीं है। भृत्य का मतलब है नौकर, और ये नौकर जो है, यद द्रव्यम द्रव्यांतरेण गुणेन अपि युक्तम सतत गुणान अनुवर्तन्ते स्वच कार्यम तद विरुद्धम किंचित करोति। ये जो कज्जली जो है या ऐसे जो योगवाही द्रव्य है, ये द्रव्य जो है ये भृत्यवत काम करते हैं, नौकर की तरह काम करते हैं। मतलब आप जिस द्रव्यों के साथ उनको देते हो, उन द्रव्यों का अनुसरण वो करते हैं, वो खुद के अपने गुण भी नहीं दिखलाते। और अगर जो वो विरुद्ध भी हो तो भी वो उसी, जैसे कि कज्जली अगर उष्ण आप मानते हो, तो अगर अनुपान शीतल अनुपान से, रस सिंदूर आप जब मानते हो कि अगर उष्ण है, तो आप रस तनिगिणी में देखिए कि कितने सारे पित्त नाशक अनुपानों के साथ वो पित्त के व्याधियों पे देने के लिए बताया गया है रस सिंदूर। तो ये किंचित विरुद्धम का क्रिया भी करते हैं, लेकिन वो अनुसरण करते हैं बाकी सारे द्रव्यों का, अनुपान का, उसके साथ आए हुए सहपान का, और वो नौकर की तरह काम करते हैं, सुप्रीमो की तरह नहीं काम करते। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए आप सिर्फ जो बाकी सब द्रव्य है उनकी आप एक तरह की शक्ति बढ़ाते हैं आप, और उनकी आप मतलब क्या कहते हैं आप उसको, बहुत देर तक काम करने की उसकी शक्ति भी आप बढ़ाते हो, और वो द्रव्य बहुत देर तक टिक एक उसकी शेल्फ लाइफ आप बढ़ाते हो। तो कज्जली इस दृष्टि से डाली जाती है, रस सिंदूर इस दृष्टि से उसमें
योगवाही द्रव्य डाला जाता है जो कि अन्य द्रव्यों का अनुसरण करे। हम आगे जाएंगे। विरुद्ध वीर्यमपि येषां प्रधानानाम अबाधकम, ये भी एक जानने जैसा सूत्र है। देखिए आप, पर्सपेक्टिव 6, विरुद्ध वीर्यमपि येषां प्रधानानाम अबाधकम, मतलब बहुत बार द्रव्यों में विरुद्ध काम करने वाले द्रव्य एक साथ मिलाए जाते हैं, लेकिन वो प्रधान द्रव्यों का विरोध नहीं करते, कार्य का विरोध नहीं करते। ये हमें जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि लक्ष्मी नारायण रस है, आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, लक्ष्मी नारायण रस, पृष्ठदोषज्वरे संधिपाते विशुच्या विषमज्वरे अतिसारे ग्रहण्यां च रक्ताभे मेहशूलधि श्रुतिकावात दोषज्ञो लंकेशमिव राघवः। तो ये लक्ष्मी नारायण रस है, आपके सामने है। इसमें कुटकी भी है, अतिविष भी है, कुटकी भी है और कुटज भी है। तो ये एक विरेचक द्रव्य है, एक स्तंभक द्रव्य है, अभ्रक है और सैंधव है। तो इस तरह के विरोधी द्रव्य भी है, लेकिन प्रधानानाम अबाधकम, इसका जो प्रधान कार्य है वो उसको उस कार्य में वो बाधा नहीं लाते। तो प्रधान कार्य है सन्निपात का नाश करना, प्रधान कार्य है दुष्ट दोष का नाश करना, विशुचि का नाश करना। तो ये जो कार्य, जो ये जो संप्राप्ति जो है, जो कि आमाशय में है, ग्रहणी में है, बृहदांत्र में, पक्वाशय में है, ये सब जगह की संप्राप्ति नष्ट करने के लिए वहाँ के द्रव्यों को चुना गया है। और भले वो एक स्तंभक है, अतिसार नाशक है, एक मल का भेदन करने वाला है, फिर भी उनसे प्रधान द्रव्यों का बाधा नहीं लाते, ऐसे ये द्रव्य है लक्ष्मी नारायण रस। और उससे आपको ये दिखता भी है उसका उपयोग। और आप जान सकते हो कि ऐसे द्रव्य परस्पर विरोधी काम करने वाले फिर भी एक साथ लाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि सन्निपात का हरण हो। बहुत बार सन्निपात जो दोषों का एक साथ होता है, उसमें इस तरह के विरोधी द्रव्य भी साथ में लाए जाते हैं। उनको दंती स्वरस त्रिफलापात की जैसी क्वात की भावना दी गई है, जो कि उष्ण है, तीक्ष्ण है। त्रिफलापात जैसी जो एक विरेचक भी है, उसकी भावना दी गई है। तो ये लक्ष्मी नारायण रस जो है, ये इस तरह से सन्निपात का नाश करने में सबसे बेस्ट, सन्निपात ज्वर में एक सबसे अच्छी दवाई है। तो प्रधानानाम अबाधकम, ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। पर्सपेक्टिव 7, एक आपके सामने मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। संस्कार भेद से अधिकार परिवर्तन कैसे हो जाता है और सूक्ष्म भेद से भी कैसे हो जाता है, और ये ड्रग डिजाइन में ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, ग्रंथ में कहा गया है, जो प्रोसेस कही गई है, जिस तरह से द्रव्यों को मिलाने के लिए कहा गया है, वो हम छोड़ के अपने मन से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो एक सूक्ष्म सा भेद ड्रग डिजाइनिंग में या ड्रग के प्रोसेस में किया हुआ सूक्ष्म सा भेद किस तरह से आपको पूरी उसकी अधिकार में ही परिवर्तन हो जाता है, इसका उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो आप जरूर देखिए। और वो इस तरह से है कि वासाक्वाथ है, वासाघृत है, और एक वासाघृत आप ध्यान से देखिए। एक वासाघृत है वो रक्त पित्त में, एक वासाघृत है वो गुल्म है। चरक का ही ये कॉम्बिनेशन है, चरक का ही रेफरेंस है। रक्त पित्त के बाद ही गुल्म अध्याय शुरू होता है, दोनों में वासाघृत आया हुआ है। देखिए, वासा शाखा पत्र मूल 2 किलो लीजिए आप, जल 16 किलो, और उसका चतुर्थावशिष्ट क्वाथ कीजिए। तो आपको क्वाथ करके आप वासा पुष्प कल्क 250 ग्राम और घृत 1 kg, 1 लीटर ऐसे लेके उसको पकाइए, तो आपको वासा घृत मिलेगा। आगे जाके गुल्मों में भी बताया गया है कि इसी तरह से आप करो, लेकिन 16 लीटर पानी डालने के बाद, 16 लीटर पानी डालने के बाद उसका अष्टावशिष्ट ही क्वाथ करो, और उसमें वासा पुष्प कल्क डालो, और घृत आप 1 किलो डालो, 1 kg डालो। तो आपको जो मिलेगा वो गुल्म के अधिकार का वासा घृत मिलेगा। सिर्फ क्वाथ करने की पद्धति बदली हुई है और कुछ भी नहीं बदला।
एक चतुर्थावशिष्ट क्वाथ है, एक अर्धावशिष्ट क्वाथ है, अष्टावशिष्ट क्वाथ है। तो अष्टावशिष्ट क्वाथ करने से, सिर्फ इतना बदल करने से पूरा का पूरा उसका अधिकारी बदल गया, ये गुल्म संप्राप्ति नाशक हो गया। और चतुर्थावशिष्ट क्वाथ करने से ये रक्तपित्त नाशक हो गया। ये चरक के ही दो कल्प है। तो इससे आप ये समझ लो, देखिए आप, कि शेष अष्टभागे तेन सिद्धम घृतम शीतम सक्षौदरम पित्त गुल्मनो। और यहाँ पे कहा गया है कि ये जो का कषाय है, सक्षोदरम निहंती रक्तम, तो ये रक्त को अगर हो रहा है, शरीर से बाहर जा रहा है रक्त का निर्गमन, तो ये वासागृत दीजिए, जो तथा चतुर्थ अवशिष्ट है और एक अष्टावशिष्ट है। तो आपको ये रखना चाहिए ध्यान में कि किस तरह से ड्रग डिजाइनिंग में, ड्रग प्रोसेस में आप सूक्ष्म दृष्टि से विचार रखना जरूरी है आपको, जिससे एक अलग तरह की संप्राप्ति और अधिकार बदल न जाए। इसके ऊपर आपको भली भांति ध्यान देना होगा। और कभी भी आप सोचते हो तो इसके बारे में ज़रूर सोचें कि आप कैसे भी आप संस्कार का भेद और अधिकार का परिवर्तन, तो आपको ये ध्यान में रखना है। कभी भी आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे हो, ड्रग डिज़ाइनिंग कर रहे हो, या फिर ग्रंथोक्त ड्रग डिज़ाइनिंग के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो हर एक प्रोसेस, हर एक द्रव्य, ये एक सूक्ष्म दृष्टि से वहाँ पे डाला हुआ है, उसका अंतर्भाव किया गया हुआ है। और हर एक जो चीज़ है वो एक शास्त्रीय मायना रखे हुए की गई है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आपको इसका विचार व्हेन आप गोइंग टू डिज़ाइन अ न्यू ड्रग, आपको ये सामने रखना चाहिए। आगे जाएंगे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हम देखेंगे, ये प्रसिद्ध श्लोक है, अस्याचराणां व्याधिनां पंचकर्माणि भेषजम बस्तया क्षीर सर्पिषि तिक्तको पेताबीज। अस्थि के लिए तिक्त क्षीर बस्ती देनी चाहिए। और अस्थिक संशया जातान क्षीर घृतये तिक्त संयुते बस्तिर्भिस तथा। वाग्भट कहते कि क्षीर घृत युक्त तिक्त संयुक्त बस्ती, संयुक्त बस्ती देना चाहिए। इसके ऊपर की जो टीका है अरुण दत्त की, वो पढ़ने लायक है। और वो इस तिक्त क्षीर बस्ती के डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं, वो आगे हम आगे जाके देखेंगे। तो तिक्त रस का ये श्लोक प्रसिद्ध है, आपके सामने है कि पित्ताशय मरुतिष्णु अरुचिम प्रभुतरुट विषम। और ये जो है, ये क्लेदो मेद वसा मज्जा शुक्र मूत्रोपशोषणा, इसके अतियोग के कारण मज्जा का शोषण हो जाएगा। ये अतिव रुक्ष है पित्तरस। और ये अनिल व्याधि अतियोगात करोति सहा, ये वात व्याधियों को बढ़ाता है, तो वात व्याधि कराता है अतियोग से। तो ये जो रुक्ष रस है, जो मज्जा का शोषण करेगा, जो वात व्याधि निर्माण करेगा, उसका ही उपयोग यहाँ पे अस्थिक्षय में करने को कहा गया है। ऐसा क्यों किया गया, आगे जाके देखेंगे। अरुण दत्त क्या कहते हैं? अरुण दत्त ये कहते हैं कि अस्थिक्षयजान क्षीरघृते तिक्त संयुते, अस्थिक्षय के लिए क्षीरघृत और तिक्त द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। बस्ती बीज तथा तथा रूपे तिक्त संयुते इति अर्थ। और इसके लिए बस्ती का आप उपयोग करें, और बस्ती से आप क्षीरघृत और तिक्त ऐसा प्रयोग कीजिए, इनका संयुक्त प्रयोग कीजिए। तो वो बताते हैं कि ऐसा क्यों है। ननु यानि वातकृन्ति द्रव्याणि तानि अस्थिक्षयोद्भव विकारान् वृद्धिकराणि तत्र द्रव्य उपयोगः अत्र न युक्तः तिक्तस्य वातकृतत्वात्। ये जो द्रव्य है वो अस्थिक्षय उद्भव विकार में क्यों दिए गए हैं? क्योंकि यद् द्रव्यम स्निग्धम शोषणम खरत्वम उपादयति उत्पादयति तद अस्नोवर्धनम युक्तम। ये जो अस्थि है ना, ये बहुत विचित्र है। ये अस्थि जो है वो खरस स्वभाव का है। तो अस्थि के वर्धन के लिए किस तरह की योजना की जानी चाहिए? तो यहाँ पे वो कर्म और गुण का उल्लेख करते हैं कि स्निग्ध, शोषण, खर, इन तीन गुण
और कर्म करने वाले द्रव्य अगर अंदर शरीर में प्रविष्ट हो तो ही वो अस्थि का वर्धन करेंगे। तो न च एव विधम एकम द्रव्यम अस्ति, ऐसा एक द्रव्य नहीं है जो स्निग्ध और शोषण करेगा। ऐसा एक द्रव्य नहीं है जो स्निग्ध और शोषण करेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि खर और रुक्षता उत्पत्ति के लिए हमें तिक्त चाहिए और स्निग्ध के लिए क्षीर और घृत चाहिए। और इसीलिए तस्मात् क्षीर घृते तिक्ते संयुक्ते वस्तिभिश्च तिक्त संयुते उपदिष्टम। क्षीर घृतस्य तिक्त युक्तस्य खर स्वभावात्, ये क्षीर घृतस्य तिक्त युक्तस्य, क्षीर घृत अगर तिक्त के साथ रस के साथ दिए गए तो वो, लास्ट का सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है, क्षीर घृतस्य तिक्त युक्तस्य खर स्वभावात्। तो क्षीर घृत को तिक्त के साथ, तिक्त युक्तस्य, तिक्त के साथ अगर आप दिए गए देते हैं तो ये स्निग्ध, शोषण और खर, ऐसे तीनों गुण और कर्म यहाँ पे आप शरीर में प्रविष्ट करके बस्ती के माध्यम से अगर करते हो तो आपको अस्थि क्षय में फायदा होगा। इसलिए ये क्षीर घृत तिक्त क्षीर बस्ती इनका डिजाइनिंग हुआ। अब आगे जाके देखेंगे कि कैसे हुआ। तो तिक्त आकाश वायु महाभूत प्रधान, खर वृक्ष है, शोषण है, क्षीर घृत पृथ्वी अग्नि प्रधान है, स्निग्ध है, और बस्ती अगर आप देते हैं तो ये अस्थिगामी होता है। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि इस जो ये जो ड्रग डिजाइनिंग है, आप कहेंगे ड्रग डिजाइनिंग नहीं है, ये एक उपकल्पना का, बस्ती की कल्पना का डिजाइन है और ये अस्थि को सामने रख के ये बनाया गया कि तिक्त क्षीर और घृत दो। तो अगर आपके पास, आप अगर बस्ती नहीं दे सकते तो आप कोई ऐसा कल्प दे सकते हो क्या कि जो तिक्त क्षीर घृत के साथ हो और वो अस्थि के ऊपर काम करे? ऐसा कोई डिजाइनिंग हम कर सकते हैं क्या इसी सिद्धांत को लेके? तो ये भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि इस डिजाइनिंग, इस सिद्धांत के बेस पर कैसे डिजाइन किया गया है ये दूसरा कल्प, वो हम उसकी हम बात करेंगे और वो देखेंगे। देखिए कि अगर तिक्त रस का द्रव्य रखा हमने और आकाश वायु जो खर रुक्षण है और घृत भी रखा, और बस्ती के बजाय यहाँ पे अगर हमने गुग्गुल की योजना की कि जो एक अस्थिगामी है, तो अस्थिगामी गुग्गुल साथ में घृत और तिक्त ऐसे एक साथ अगर हमने कर लिया तो एक उत्तम अस्थिगामी कल्प बन जाता है। वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। और ड्रग डिजाइनिंग में इस तरह के सिद्धांत का उपयोग जरूर करना चाहिए और जो ग्रंथकर्ताओं ने किया हुआ है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, और वो है पंचतिक्त घृत गुग्गुल। ये देखिए, निम्बत्व अमृता वासा पटोल कंटकारी, ये सब तिक्त द्रव्य है, उसमें शुद्ध गुग्गुल है और बाकी प्रक्षेप कलकल सब है। और अगर आप देखते हो तो उसमें घृत 64 तोले, इतना तोला इतना घृत है। और ये जो है कल्प जो है वो आप देखते हो तो विषम अति प्रबलम समीरम संध्यास्ति मज्जगतम चापी अथ पृष्ठम। तो ये जो कल्प है ये संधि अस्थि मज्जागत प्रबल समीर, प्रबल वायु को हरण करने वाला है। और वो इसी तिक्त घृत क्षीर, क्षीर तो नहीं डाला हुआ लेकिन स्निग्ध शोषण खर, ये तीनों का उपयोग यहाँ पे किया गया है, घृत गुग्गुल और ये तिक्त द्रव्यों को साथ लेके हुए। और इसीलिए आगे जाके हम अगर देखेंगे तो देखेंगे कि ड्रग डिजाइनिंग में इस तरह से सिद्धांतों के आधार पर किस तरह से होता है। आधुनिक फलश्रुति अगर हम देखना चाहते हैं तो अंतरिक्त घृत गुग्गुल अधिकार पुष्ट है, लेकिन फिर भी ये वातनाशक है। संधि अस्थि मज्जागत प्रबल समीर, कुष्ठ नाड़ी व्रण भगंदर अर्बुद भगंदर गंडमाला,
और बाकी सब यहाँ पे दिए हुए हैं उसके फलश्रुति। और आधुनिक फलश्रुति अगर हम देखेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, इन सब में इवन दो कैल्केनियल स्पर्म में भी पंचतिक्त घृतगुग्गुल का बहुत ही सुंदर उपयोग अ, देखा गया है। तो ड्रग डिजाइनिंग में इस तरह से हमें इस सिद्धांत का भी उपयोग करना चाहिए जो कि हमारे ग्रंथकर्ताओं ने किया। वो है कि मूल स्वरूप में हमें जहाँ पे भेषज का उपयोग करना है वो अवयव या वो एक धातु या वो दोष या वो स्रोतस किससे घटित है, वहाँ पे कौन से गुण हमें प्रस्थापित करने चाहिए संप्राप्ति भंग करने के लिए, इसको जानना जरूरी है। और इसका उपयोग हम किस तरह से सिद्धांतों के आधार पर कर सकते हैं ये आपके सामने मैंने रखा। आगे जाएंगे। ड्रग डेवलपमेंट, एक ड्रग डेवलपमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक ड्रग डिजाइनिंग में बहुत बड़ी मायने रखती है। और उसमें हम देखेंगे एक उत्तम आपके सामने मैं रेफरेंस रखना चाहता हूँ और वो है हमारे सुप्रसिद्ध फलक घृत का। ये जो है वो है फलक घृत। और फलक घृत का जो संदर्भ है वो वेरी फर्स्ट रेफरेंस ऑफ फलक घृत, और वो है सुश्रुत उन्माद चिकित्सा में। देखिए आप, बालानां ग्रहजुष्टानां पुंसां दुष्ट अल्परेतसां ख्यातम फलघृतम स्त्रीणां वंध्यानां च आशुगर्भदम। ये सुश्रुत में उन्माद चिकित्सा में आया हुआ फलघृत है। और ये बालानां ग्रहजुष्टानां पुंसां दुष्ट अल्परेतसां ऐसे कहा गया, और लास्ट में कह दिया कि ये आशु गर्भदम, स्त्रियों को अगर दिया जाए तो उससे गर्भ प्राप्ति होगी। बनाया गया उन्माद के लिए, और लास्ट में कहा गया ये आशु गर्भद है और वंध्या स्त्री को देना चाहिए। आगे जाके देखते हैं कि क्या हुआ। फिर ये आया वाग्भट उत्तर तंत्र गुह्य रोग चिकित्सा में, और उसमें कहा गया कि पहले ही कहा गया योनि शुक्र प्रदेशे प्रदोषेशु, और लास्ट में कहा गया एतत् परम च बालानाम ग्रहग्नम देहवर्धनम। सुश्रुत में ये योनि शुक्र दोषेशु ये पहले नहीं कहा था, उसको कहा था बाला नाम ग्रह जुष्टा नाम, ये पहले आया। यहाँ पे देखिए कि इसमें आया लास्ट में एतत् परम च बाला नाम ग्रहग्नम देहवर्धनम, लास्ट में पहले आया योनि शुक्र प्रदोषेशु तत्सर्वेशु प्रशस्यते। पहले ये फलघृत जो है ये योनि शुक्र दोष हर है, आयुष्य है, पौष्टिकम मेद्यम धन्य पुंसवनम परम फलसर्पी इति ख्यातम पुष्पे पीतम फलाय च म्रियमाणां प्रजानानां गर्भिणीनां च पूजितम। इसके करके चार सेंटेंस में, चार वाक्यों में इसकी प्रशस्ति योनि शुक्र प्रदेशु प्रदोषेशु ही कही गई, गर्भिणी नाम पूजितम ही कहा गया इसको। और बाद में कहा गया कि ये बालानाम ग्रहग्नम देहवर्धनम, ये बालों के लिए उन्मादनाशक है, ये लास्ट में कहा गया। चेंजेस कैसे होते हैं ड्रग डेवलपमेंट में, जैसे जैसे शतकों बीत जाते हैं उसके बाद में कैसे हो जाता है ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आगे जाके देखेंगे कि चक्रदत्त में योनिवापक चिकित्सा में ये आया, और ये भी इसीलिए आया कि पुत्रां जनयत नारीं मेधा प्रिय दर्शनम चैव अस्थिर गर्भा, ये भी कहा गया उसमें। और ये अल्पायुषी होने वाले जो बालक है या फिर कन्या च प्रसूयते, परिस्राव, गर्भ परिस्राव जिसमें होता है, योनि दोष होता है, तो उसके लिए आप ये सर्पी बनाया गया है, घृत बनाया गया है कि जो पुत्रान जनयते नारी मेधाढ्यान प्रिय दर्शनान स्त्रीषु वृषायते, इस तरह से इसको तैयार किया गया। और ये श्लोक है चक्रदत्त का।
इसकी ड्रग डेवलपमेंट अगर हम देखना चाहते हो तो इसको इसको आगे की स्लाइड में हमने कहा गया है कि ये फलद्रुत जो है ये इस तरह से सुश्रुत, वाग्भट और चक्रदत्त में किस तरह से आया और उसकी ड्रग डेवलपमेंट कैसी हुई आपके सामने रख रहा हूँ। और उसमें अगर हम देखेंगे तो वाग्भटाचार्य ने शतावरी इंक्लूड की इसमें, और शतावरी इंक्लूड करने के बाद ये हो गया स्त्री दोषनाशक, स्त्री रोगनाशक और गर्भप्रद हो गया। और चक्रदत्त में थोड़ा और चेंजेस हो गए चक्रदत्त में, और उसमें कमल, मुकुद चंदन, कुमुद चंदन, रक्त चंदन ऐसे दवाइयाँ आ गई जो कि एक पित्तग्न है और गर्भस्राव नाशक है। ये दवाइयाँ उसमें आ गई, भेषज उसमें आ गए, और ये फलद्रुत का पूरा डेवलपमेंट ही बदल गया। तो देखे थे अगर हम एक लार्ज पर्सपेक्टिव अगर लेना चाहते हो आप, तो इस तरह से आपके सामने है। सुश्रुत ईस्वी सन पूर्व, ईसा पूर्व 1 शतक, वाग्भट 4थे शतक में हुआ और चक्रदत्त 11वीं सदी में हुआ। तो एक आया उन्माद चिकित्सा में, दूसरा आया गुह्य रोग चिकित्सा में, और तीसरा आया संतानकल फलद्रुत, वो पूरा पित्त शामक हो गया। और इसके चक्रदत्त ने 2 तरह के फलद्रुत बताए, एक संतानकर और एक योनिशूलहर फलद्रुत, और जिसमें संतानकर में ज़्यादा करके पित्त शामक दवाइयाँ है और योनिशूलहर फलद्रुत में कटुतिक्त वात शामक दवाइयाँ है। तो इस तरह से ये फलद्रुत की एक तरह की टाइमलाइन है जिसके हम शतकों की बात करते हैं। तो ईस्वी सन पूर्व 1 शतक से लेके ईस्वी सन 11वें शतक तक, यानी कि 1200 वर्षों में इसमें कैसे बदलाव आ गए, और ये ड्रग का डिज़ाइनिंग उनके उद्देश्य से कैसे बदला, और हमारे ग्रंथकर्ताओं ने कैसे उसमें बदलाव लाया, उसमें छोटे छोटे परिवर्तन कैसे किए और उससे फलश्रुति कैसे बदलती गई, ये आपके सामने रख रहा हूँ। आपका ये बहुत ही मनचाहा चहिता कल्प है, सर्वोपयोगी है फलद्रुत, लेकिन ये उन्माद से शुरू होके 2 तरह के फलद्रुत के डिजाइनिंग तक आ गया। ये है ड्रग डेवलपमेंट, और ये ड्रग डेवलपमेंट एक विशिष्ट उद्देश्य से होता है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आगे जाएंगे, वो है संप्राप्ति भंग विचार, और वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और जब मैंने कहा था वैसे व्याधि भेषज का आपको विचार रखना चाहिए, और उसमें हमें देखना चाहिए कि किस तरह से व्याधि संप्राप्ति का विचार होता है। अगर आप देखेंगे तो नवायास चूर्ण, ताप्यादिलोह, पुनर्नवा मंडूर, ये तीनों जो है ये लोहकल्प है, और इनके डिजाइनिंग में आपको एक जो गण है वो सामान्य तौर पे दिखेंगे, और वो है त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमल। बाकी के सब द्रव्य भिन्न है, लेकिन त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमल ये तीनों में कॉमन है। अब ये क्यों आए, इनका क्या उपयोग है, इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। तो व्याधि संप्राप्ति और संप्राप्ति का एक अच्छी तरह से ज्ञान होना ड्रग डिजाइनिंग के लिए क्यों जरूरी है, इसका ये महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूँ। पांडु की संप्राप्ति अगर आप देखते हो तो दोषापित्त प्रधानस्तु यस्य कुप्पन्ति धातुषु वगैरह वगैरह उसमें सब बताया गया है। और शैथिल्यम तस्य धातुनां गौरवं चोपजायते ततो वर्ण बलस्नेहाय च अन्ये च अपि ओजसो गुणः भजन्ति क्षयमत्यर्थं दोषदुष्य प्रदूषणात् सो अल्परक्तो अल्पमेधस्थो निस्सार शथिलेन्द्रियः वैवर्ण्यम भजते तस्य हेतु शुणम सलक्षणम। तो ये पांडु जो है उसमें ततो वर्ण बल स्नेहाइश्च ये च अपि अन्यो च अपि ओजसो गुणः, ये ओज के गुण नष्ट हो जाते हैं, ऐसे कहा गया इसमें। तो ये पांडु किसका व्याधि है, ये आगे जाके देखेंगे। क्या पांडु रक्त का व्याधि है? अगर रक्त का व्याधि है तो रक्तवर्धक कल्प होने चाहिए, रक्तवर्धक उसमें द्रव्य होने चाहिए,
तो बेसिक उसका बेस क्या कहते हैं उसके बारे में हम सोचेंगे, और उसका प्रश्न उपस्थित किया है चक्रपाणि ने, और उसका उत्तर भी चक्रपाणि ने दिया है। तो हम वो टीका में देखेंगे कि क्या चक्रपाणि कहते हैं। वो कहते हैं कि संप्राप्ति भंग विचार में, यद्यपि रक्तपित्तयोः एकयोनित्वात् पित्तेन रक्तवृद्धिः भाव्यात् तथा अपि रक्तक्षयो किम। तो अगर रक्त और पित्त की एक ही योनि है और पित्त से रक्त की वृद्धि है, अगर पित्त बढ़ने से रक्त की वृद्धि होती है, तो फिर यहाँ पे आप कहते हो कि पित्त दोषः ये पित्त प्रधानस्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु, आप कहते हैं कि यहाँ पे पित्त प्रधान दोष और सब हेतु आप कहते हो वो सब पित्त वर्धक है। तो पित्त के वर्धन होने से रक्त की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रक्त क्षय कैसे हुआ, ऐसा प्रश्न उपस्थित करते हैं चक्रपाणि। और उसका वो देते हैं, वो उत्तर भी देते हैं कि रक्त पोषक रसस्य पित्तेन क्षपणात् रक्त पोषक सार भागाश्च अनुत्पादाश्च रक्त पोषक रसस्य पित्तेन क्षपणात्। वो कहते हैं कि रक्त पोषक जो अंश है रस का, वो उसका पित्त के द्वारा क्षपण हो जाता है, वो पित्त के द्वारा वो कम हो जाता है, क्वांटिटी में कम हो जाता है, क्वालिटी में कम हो जाता है, और इसीलिए रक्त पोषक सार भाग अनुत्पादाश्च, रस से रक्त पोषक सार भाग नहीं बन पाता, क्योंकि पित्त बढ़ के रस धातु में चला जाके वो रस के उपयोगी अंश को क्षपण कर देता है। तो इसीलिए आपको रस पे कार्य करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए, जो कि रस धातुअग्नि वर्धक हो, रस में निर्माण होने वाले दोषों का शमन करे। और इसीलिए स्वस्थानस्य कायग्ने अंशा धातुषु संश्लिष्टा तेषां सादातिदित्युभ्यां धातुवृद्धि क्षयोद्भव, ये सूत्र भी आपके सामने है। और इसीलिए त्रिफला त्रिकटु त्रिमद, ये तीन जो है वो रस धातुअग्नि बढ़ाएंगे, रस के ऊपर काम करेंगे, रसव स्रोतस का अग्नि बढ़ाएंगे, रसव स्रोतस का पचन ठीक करेंगे। और अगर वो अच्छी तरह से रस धातु का अग्नि बढ़ गया और रस धातु का धातु में जो रक्त के आगे के धातु का पोषक अंश अगर अच्छी तरह से बन गया तो ही पांडु ठीक हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे आप कैसे भी बनाओ, ताप्यादि लो बनाओ, पुनर्नव मंडूर बनाओ, हर एक का गामित्व अलग है, हर एक का दोषनाशकत्व अलग है। पुनर्वा मंडूर कफवात शामक है, शोथनाशक कल्प है, तो ताप्यादि लो पित्त शामक है। लेकिन त्रिफला त्रिपटु त्रिमदि तीनों उसमें अवश्यमेव है ही। ये ड्रग डिजाइनिंग है और ये ये व्याधि संप्राप्ति को आगे देखते हुए ही बनाया गया है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप देखते हैं तो आपके सामने आएगा कि इस तरह से नवायास चूर्ण पांडु कामला पुष्ट में है, लेकिन नवायास जो है अर्श शोथ प्रमेह पीड़िका में है, और ताप्यादि लोग जो है वो गुदज विकार प्रमेह अजीर्ण कास श्वास यक्ष्मा विषम ज्वर में है। पुनर्नवा मंडूर जो है वो भी कुष्ठनाशक है, लेकिन कफवात शामक है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आधुनिक फलश्रुति देखते हैं या फिर उसका उपयोग आगे जाके देखेंगे तो इस तरह से है। आपके सामने रख रहा हूँ। आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए आप। नवायास चूर्ण कफवात शामक है, ताप्यादि लोग कफपित्त शामक है, और पुनर्नवा मंडूर कफ शामक है। नवायास चूर्ण संतर्पणजन्य व्याधियों में है, और पांडु अन्न व स्रोत दृष्टि में नवायास चूर्ण का काम है।
और क्रॉन्स डिसीज IBS में इसका उपयोग होता है, जो कि एक अन्नवस्रोतस का व्याधि है, के व्याधियों में। ताप्यादिलोह जो है इसका मज्जागामित्व है, क्योंकि इसमें रौप्य है, स्वर्णमाक्षिक है, तो ये बोन मैरो डिस्फंक्शन से होने वाले पांडु में, यक्ष्माजन्य होने वाले पांडु में, विषम ज्वरजन्य पांडु में इसका उपयोग है। और पुनर्नवा मंडूर जो है एक तरह से स्रोतोरोधनाशक कल्प है, कृमिजन्य पांडु में, लिम्फॉइड ल्यूकेमिया में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, वैस्कुलाइटिस में इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से इनका हर एक लोह कल्प में जो भी डिजाइनिंग है वो अलग अलग है, उनका दोषनाशकत्व अलग अलग है, उनका गामित्व अलग है, उनके धातुओं की पे काम करने की क्षमता अलग है। पांडुओं में हर एक तरह के पांडु के कारणों के अनुसार उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन फिर भी त्रिफला त्रिकटु त्रिमद ये जो 9 द्रव्य है वो उसमें अवश्यभावी है ही, क्योंकि उसकी संप्राप्ति, पांडु की संप्राप्ति, और ये पांडु की संप्राप्ति को देखते हुए ही ये दवाइयों को चुना गया है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम आगे जाएंगे, और आप सबको सुनाई दे रहा है ना सब अच्छी तरह से? हेलो, हाँ ये सर। आपको समझ रहा है ना आप जो, हेलो, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो ना सब? हाँ सर, ये सर हेलो, बिल्कुल। हेलो सर, आगे बिल्कुल जाएंगे। आवाज सुना दे रहे हैं। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आगे जाएंगे। प्रक्षिप्त पाठ, ये एक अलग सी बात है, और ये भी ड्रग डिजाइनिंग में हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। महायोगराज गुगुल एक उत्तम उदाहरण है इसका। और अगर आप शारंगर संहिता में देखते हो तो वंगम रोप्यम च नागम च लोहसार तथा अभ्रकम मंडूरम रस सिंदूरम प्रत्येकम फल संमितम, ये जो इसमें लाइन आ गई, योगराज गुगुल को महायोगराज बनाने वाली ये जो यहाँ पे पंक्तियाँ इसमें है, ये एक तरह का भ्रष्टीकरण है योगराज गुगुल का। क्योंकि शारंगधर संहिता के आढ़मल्य टीका में कहते हैं कि इसके अन्य पुस्तकों में ऐसा पाठ उपलब्ध नहीं है, कई पाठों में, कई पुस्तकों में ऐसा पाठ उपलब्ध है, और वो योगराज गुगुल को फोर्टिफाइड बना के ये महायोगराज गुगुल बनाया गया। योगराज गुगुल एक उत्तम वात शामक और योगराज इति ख्यातो, यानी कि सब गुगुलों का राजा, ऐसे ये बनाया गया ये योगराज गुगुल। ये अनेक अनेक व्याधियों का नाश करता है, लेकिन उसमें अगर हम भस्म डालते हैं तो किसी ने ये सोचा होगा कि ये उत्तम कल्प है, इसमें अगर भस्म डालते हैं तो ये महान काम और करेगा, तो इसीलिए इसमें भस्म डाले गए और महायोगराज गुगुल बनाया गया। लेकिन ये सब प्रतियों में, पुस्तकों में उपलब्ध नहीं होता, कई प्रतियों में शारंगधर संहिता के उपलब्ध है। जहाँ पे ये पहले वर्णित किया गया उसकी मैं बात कर रहा हूँ, महायोगराज की। आगे जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसका डिजाइनिंग है। तो ये गुगुल कल्पों का डिजाइनिंग इस तरह से नहीं होता जिसमें भस्म 112 भाग हो। गुगुल का परसेंटेज ही सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि योगराज में 60 भाग है, लेकिन भस्म इतनी ज़्यादा मात्रा में उसमें डाले गए कि जो कि एक डिज़ाइनिंग के मायने में ये थोड़ी सी गलत बात हमें दिखती है, और ये किसी ने ये प्रक्षिप्त पाठ करके किया गया है, और ये एक तरह से फोर्टिफाइड गुगुल इसको बनाया गया। और ये महायोगराज गुगुल आपके सामने है, और ये सहयोगी द्रव्य त्रिफला और गुगुल, इस तरह से ये बनता है योगराज गुगुल। इसमें ये वंगम रोप्यम नागम लोह अभ्रकम तथा मंडूरम और रस सिंदूर, इनको ऐड किया गया। ये कई शतकों के, सदियों की बात होगी जरूर। आगे जाके देखेंगे कि इस तरह से काम होता है इसका। प्रक्षिप्त पाठ है ये, और फोर्टिफाइड योगराज गुगुल बनाया गया। दोषज्ञता देखिए कि ये गुगुल त्रिदोषज्ञ है, त्रिफला कफपित्त नाशक है और सहयोगी द्रव्य कफवात नाशक है। और जिस तरह से ये गुगुल स्रोतसों में जाएगा, उसके टिप पे, जैसे कि ये मिसाइल जो जाता है या फिर
ये जो स्पेस में जो हम भेजते हैं उसमें नीचे के जो द्रव्य होते हैं वो नीचे के जो द्रव्य वो ईंधन की टंकियाँ होती है और वो विलग विलग हो जाती है और उसका जो टिप है वो ही अवकाश में लास्ट में पहुंचता है। तो इसी तरह से ये भस्म जो है वो ये योगराज के कंटेंट जो त्रिफला और स्रोतोशोधक द्रव्य जो है और गुगुल का जो गामित्व है वहां तक पहुंचाने के लिए सिर्फ योगराज गुगुल के कॉम्बिनेशन का उपयोग किया गया है। इस तरह का ये डिजाइनिंग बनाया गया, भस्म त्रिदोषक ने इसमें डाले गए और फिर उनको बनाया गया एक तरह से महायोगराज गुगुल नामाभिधान दिया गया। और कार्यकारी द्रव्य जो है वो सिर्फ भस्म है महायोगराज में। जैसे कि हम लोग अगर कलर करना चाहते हैं किसी रूम को तो पहले उसको इसमें पॉलिश पेपर से वहाँ के वॉल्स को घिसते हैं, फिर बाद में चूना लगाते हैं और ऊपर से फिर कलर लगाते हैं। इस तरह से स्रोतोसोम को भेदने की क्षमता होने वाले द्रव्य जो है वो पहले स्रोतोसोम की स्वच्छता करते हैं और बाद में स्रोतोसोम में लिपटे हुए आम का नाश करेंगे और उसके बाद में जाके अंदर प्रविष्ट होकर ये भस्म काम करेंगे। इसीलिए ये कल्प स्रोतोरोधनाशक और एक ही साथ में रसायन और वृक्ष बन गया है। ऐसे कल्प बहुत कम होते हैं। महायोगराज गुगुल एक ही साथ में आमपाचक, स्रोतोरोधनाशक, रसायन और वृक्ष है। तो इस तरह की इसकी डिज़ाइनिंग हो गई और वो डिज़ाइनिंग एक करप्ट डिज़ाइनिंग है, ये आपके सामने मैं खास करके रखना चाहता हूँ। और लेकिन इसका जो उपयोग है वो वात व्याधियों में बहुत अच्छा ही होता है। और जहाँ पे सामावस्था या स्रोतोरोधात्मक अवस्था और धातुक्षयात्मक संप्राप्ति दोनों साथ में दिखते हैं कभी कभी वात व्याधियों में। और ऐसे व्याधियों में महायोगराज गुगुल का बहुत ही सुंदर उपयोग होता है। आप जरूर करके देखिए। सामत्व जब हो, अग्निमांद्य हो और अवरोधात्मक संप्राप्ति हो तब हमें बृहन कल्प जैसे बृहत्वा चिंतामणि वगैरह हम नहीं दे सकते। शुद्धि करनी चाहिए, पहले बस्ती देनी चाहिए, आमपाचन क्रिया करनी चाहिए। स्रोतोरोधनाशक कल्प के उपयोग के बाद ही आप बृहत्वा चिंतामणि जैसे रसायन दे सकते हो। लेकिन महायोगराज को इसको एकमेव अपवाद है जिसमें आप इस तरह के भस्मों का उपयोग योगराज गुगुल के कॉम्बिनेशन की सहायता लेके आप कर सकते हो। ऐसा ये डिजाइनिंग बन गया है बाद में। आगे जाएंगे। कार्मुकत्व अगर आप देखेंगे तो आपके सामने है कि रसायन आमपाचन जैसे मैंने बताया था, शूलग्न और मेदोहर ऐसे काम इसमें दिखते हैं। और पाचन वर्धन, दृष्टिनाशक, रक्त दृष्टिनाशक, रक्तवर्धक, इस तरह का कार्मुकत्व आप महायोगराज गुगुल का इसका स्पैन बढ़ गया, काम करने का तरीका भी बदल गया। वो इस तरह से है। कुलगुरु योगराजो अयम तेजो शग्नो रसायन। लास्ट में देखते हैं हम, और वो है हमारा संहितोक्त तत्व, पर्सपेक्टिव 12। और वो है कि एक तरह से ड्रग का जो विचार है वो हम किस तरह से करें इसके बारे में चरक विमान स्थान में जो कहा गया है वो आपके सामने रख रहा हूँ। और वो है तस्माद रस प्रभावतश्च, द्रव्य प्रभावतश्च, दोष प्रभावतश्च, विकार प्रभावतश्च तत्वम उपदेक्ष्यामः। तो हम इस तत्व का उपदेश करने जा रहे हैं। वो है कि आप द्रव्य का विचार, ड्रग के डिजाइनिंग का विचार इस तरह से करें कि रस प्रभाव क्या है, द्रव्य प्रभाव क्या है, दोष प्रभाव क्या है और विकार प्रभाव क्या है। हर एक में कोई अलग से पॉइंट्स भी आ जाते हैं, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और अब हम लेक्चर की समाप्ति करेंगे इसके बाद में। और वो है दोष प्रभाव में दोष पर कार्य, मल पर कार्य और धातु पर कार्य, इस तरह से दोष पर कार्य हमें दिखता है।
द्रव्य प्रभाव में हम किसके बारे में सोचते हैं? तो द्रव्य प्रभाव में हम देखते हैं संदर्भ क्या है, पाठभेद क्या है इसके, एक ही ड्रग के। बाद में द्रव्य गुण कर्म का विचार करते हैं हम, जैसे कि मैंने कहा था व्याधि भेषज प्रभाव तत्व व्यवस्थित, एक एक द्रव्य का अलग अलग सोचना। और बाद में समुदाय प्रभाव तत्व व्यवस्थित, समुदाय के प्रभाव का विचार करना। इस तरह से हम सूर्यशेखर, स्वर्णमालिनी वसंत, या फिर जो भी लक्ष्मी नारायण, जो भी द्रव्य आपके सामने आया, महामंजिष्ठाधिक बात आया, रासनारायणाधिक बात आया, चित्रकादि गुटिका आ गई, या फिर फलघृत आया, महाकल्याण घृत आया, जो भी सामने आपके आए, उस द्रव्य का द्रव्य गुण कर्म के अनुसार आप उसका विचार सामने रखिए। निर्मितिक प्रक्रिया देखिए उसकी किस तरह से, वो भी इम्पोर्टेंट है। और पाठ की, पहले तो पाठ भेद देखिए, पाठ की निश्चिति कीजिए, निर्मित प्रक्रिया के बारे में सोचिए, और फिर द्रव्य गुण रसवीर्य विपाक पांचभौतिक संगठन, इन सब का विचार आता है, वो है द्रव्य प्रभाव। बाद में आएगा रस रस प्रभाव, और रस प्रभाव में आता है, जैसे मैंने कहा था कि इन डिटेल पांचभौतिक विचार, वीर्य विचार, विपाक विचार, इन डिटेल में आपको रस प्रभाव में करना चाहिए। और वो द्रव्य गुण से जाके आगे होता है, और वो पांचभौतिक संगठन तक जाता है, रस प्रभाव का विचार। और बाद में जो आता है लास्ट में, वो है विकार प्रभाव। और विकार प्रभाव में आपको ये जरूर देखना है, और वो है अधिकारोक्त व्याधि संप्राप्ति भंग विचार। जैसे मैंने कहा था कि आपको व्याधि और दोष, इनको साथ में, व्याधि और भेषज, इनको साथ में मिला के देखना चाहिए। तो जैसे हमने पांडु की संप्राप्ति को देखा, तो एक संप्राप्ति आप फ्लो चार्ट में, या उसके जो घटक है संप्राप्ति के, उसको एक साथ में रखिए, और फिर अधिकारोक्त जो संप्राप्ति है उसको, और फिर आप जो भी आपके साथ सामने कॉम्बिनेशन है उसके सब द्रव्यों को रखिए, और वो उनको मिलाने की कोशिश कीजिए कि इस तरह ये द्रव्य किस तरह से ये संप्राप्ति को भंग करने में समर्थ रहेंगे, इसका आप विचार कीजिए। और इसके विचार करने के बाद जो आता है, वो आता है मात्रा का विचार, कि आप मात्रा कितनी दे, अनुपान का विचार। और बाद में आता है अन्य व्याधि विचार, अधिकारोक्त व्याधियों के साथ साथ अन्य व्याधियों का भी उल्लेख फलश्रुति में होता है, तो उनका भी एक तरह से आप अभ्यास कीजिए, और देखिए कि वो व्याधि किन किन स्रोतों के हैं, उनमें क्या संप्राप्ति वैशिष्ट्य है, और वो क्या अधिकारोक्त व्याधि संप्राप्तियों से साम्य दर्शाते हैं कि अलग से है, इसके बारे में आप सोचिए। तो आपका ड्रग डिजाइनिंग का एक एस्पेक्ट आपके सामने आएगा। तो अधिकारोक्त संप्राप्ति भंग विचार, मात्रा अनुपान के विचार के बाद में अन्य व्याधि विचार। बाद में आते हैं अनुभव, कि इसके अनुभव हमने क्या लिए, रुग्ण परीक्षण के बाद रुग्णों के ऊपर अनुभव कैसे किए, द्रव्यों को किस तरह से हमने यूज किया, और फिर कितने दिनों में इनका व्याधि का उपशम हुआ, कैसे हुआ, कौन से लक्षण पहले थे, कौन से अभी चले गए, इसके बारे में जो विचार है वो अनुभव का विचार है। और बाद में आता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है निषेध विचार, कि इन कल्पों को कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए। एक तो अपने अनुभव से आता है, या फिर ग्रंथ करते भी लिखते हैं कि इसमें इसका उपयोग ना करें, या ये कल्प ऐसा है, बहुत कम बार लेकिन लिखते भी है। और अनुभव से हमें पता चल जाता है कि इसका निषेध कैसे होना, कब करना चाहिए। तो एक तरह से आपको ड्रग डिजाइनिंग के लिए इन मुद्दों का विचार आपको करना चाहिए, जो कि हमें खुद ग्रंथों ने बताया है कि तस्माद् रस प्रभावतश्च द्रव्य प्रभावतश्च दोष प्रभावतश्च विकार प्रभावतश्च तत्वम उपदेक्ष्यामः। तो कोई भी ड्रग आपको अगर उसके डिजाइनिंग के बारे में सोचना है, तो आपको इन मुद्दों का विचार करना ही होगा, और आपके सामने है द्रव्य प्रभाव, रस प्रभाव, दोष प्रभाव और विकार प्रभाव। आपके सामने मैंने ये ड्रग डिजाइनिंग आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा। इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जो भी हमें यहाँ पे संधि उपलब्ध की गई, उसके लिए मैं श्रेयस ई लर्निंग और इनके जो प्रवर्तक है वैद्य चिन्मय फोंडेकर, जो कि बहुत उत्तम रसशास्त्री है और बहुत अच्छे कल्प और भस्म बनाते हैं,
उनका मैं आभारी हूँ, उनको अभिवादन करता हूँ और यहाँ पे मेरा लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। संयुक्तोक्त प्रिंसिपल्स पर आधारित ड्रग हेलो। डिजाइनिंग के अलग अलग पर्सपेक्टिव आपने सोदाहरण यहाँ पे रखे, बताए। डिकोडिंग ऑफ ड्रग यह बहुत आवश्यक प्रक्रिया होती है जो आपने सरल शब्दों में बताई। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे किसी को प्रश्न रहेंगे तो प्लीज चैट बॉक्स में पूछें, या अन्यथा प्रश्न नहीं रहेंगे तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं। हेलो। हॅलो हेलो। हेलो। हॅलो हाँ। हो, एक 2च मिनिटं थांबूया, कोणी प्रश्न असतील तर। हेलो। हॅलो हाँ। हेलो। इथे प्रश्न कोणाचे असतील तर एक 2 मिनिटं थांबूया, अदरवाईज आपण इथे थांबूया। इथे प्रश्न नाही आहेत आता। ओके, ठीक है। ओके। थैंक यू वेरी मच। येस सर, येस।
This conference will now be recorded.